ماحول کے تحفظ کے بڑے اقدام کا آغاز۔ وزیر اعظم کا 7300 مربع کلومیٹر رقبے پر 15 نیشنل پارکس کے قیام کا اعلان۔ جنگلات کا رقبہ 13% سے بڑھا کر 15% کیا جائے گا۔ آئندہ نسلوں کو محفوظ اور صحت مند پاکستان منتقل کرنا ہے۔ سیاحتی علاقے کھولنے سے پہلے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ماحول کو محفوظ بنانے کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ اسلام آباد کو مزید خوبصورت اور جدید شہر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے راول ڈیم، انٹرچینج، کورن پل، PWD انڈر پاس اور I-15 کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبوں پر 3 ارب روپے سے زائد لاگت آئی تھی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کی زیر صدارت عید الاضحیٰ کے دوران کورونا سے متعلق حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کے حوالے سے اجلاس۔ تمام سٹیک ہولڈرز، علماء اور صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ عوام وائرس سے بچنے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور اجتماعی قربانی کریں۔ صدر مملکت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کراچی کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سیکیورٹی سمیت دیگر پیشہ ورانہ امور پر بریفنگ۔ سندھ رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ۔ یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ کراچی میں امن و امان کے حوالے سے سیکیورٹی اداروں کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ PIA کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کریں گے۔ پائلٹس کی اسکروٹنی مکمل ہو چکی۔ جہاز اڑانے والے تمام ہواباز تحقیقات کے بعد کلیئر۔ PTI وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں مینڈیٹ میں شفافیت لانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی نیوز کانفرنس۔ حکومت کی اولین ترجیح مسافروں کا تحفظ۔ تحقیقات کے بعد 54 افراد گراؤنڈ۔ سول ایویشن لائسنسنگ اتھارٹی کے 5 سرکردہ افراد معطل۔ 2010 سے 2018 کے درمیان 236 افراد کو خلاف ضابطہ لائسنس جاری کیے گئے۔ وفاقی وزیر سید علی زیدی اور معاون خصوصی شہزاد اکبر کی میڈیا سے گفتگو۔ خلیجی ممالک کے لیے PIA کی پروازیں جاری رہیں گی۔ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو متعلقہ ملک اور ایئر لائن کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا۔ پاکستان سے بڑی تعداد میں کورونا مریضوں کے باہر جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ معاون خصوصی معید یوسف کی اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ۔ ترجمان پاک فوج کی کنٹرول لائن اور گلگت بلتستان میں اضافی دستوں کی تعیناتی سے متعلق بھارتی میڈیا کی خبروں کی تردید۔ اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ بھارت اپنی گھناؤنی حرکتوں کے ذریعے پاکستان اور جموں و کشمیر کے درمیان موجود مضبوط رشتوں کو کسی صورت متزلزل نہیں کر سکتا۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کا ٹویٹ۔ پنجاب حکومت کا عوام کے لیے بڑا ریلیف۔ آٹے کی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1050 سے کم کر 850 روپے مقرر۔ معاشی مشکلات کے باوجود عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار۔ ملک بھر میں مزید 4339 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ تعداد 2,17,809 ہو گئی۔ 78 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مجموعی طور پر 4,473 اموات، 1,04,694 افراد صحت یاب۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,09,19,000 سے تجاوز کر گئی۔
5,21,000 से जायद अमवात, 61,06,000 से एहतियात। अमरीका में हलाकतों की तादाद 1,31,000 से तजावुज कर गई। टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन और सर्वे का काम जारी। 9 करोड़ एकड़ से जायद रकबे पर सर्वे, 22,80,000 एकड़ पर ऑपरेशन मुकम्मल। 36 अजला के मुतासरा इलाकों में 966 टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियों के लिए वुस्टरशायर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह बॉलिंग में अपनी सलाहियतें निखारने में मसरूफ। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अगस्त और सितंबर में खेली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सदफ अली खान और खेलों की खबरों से मैं समी इकबाल आपको ज्वाइन करूंगा। हेडलाइंस के बाद बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने कुदरती माहौल के तहफ्फुज के बड़े इकदाम का आगाज किया है, जिसके तहत जंगलात के रकबे को 13% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। वजीर आजम ने 7,300 मुरब्बा किलोमीटर के हवाले से वजीर आजम ने 7,300 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर 15 नेशनल पार्क्स का ऐलान किया है। इसी हवाले से मजीद तफसील से आगाह करेंगे हारून इलाही तू। आइए देखते हैं। ग्रीन पाकिस्तान विजन के तहत शुरू किए जाने वाले प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव का मकसद कुदरती माहौल को महफूज बनाना और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना है। इकदाम के तहत शिमाली इलाका जात, साहिली पट्टियों और मैदानी इलाकों में कुदरती हयात के लिए महफूज एरियाज का क़याम अमल में लाया जाएगा। मनसूबे के पहले मरहले में बराह रास्त मुलाजमतों के 5,000 मौके मुयस्सर होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जंगलात के खात्मे से जंगली हयात के मस्कन को नुकसान पहुंचा और माहौल पर मनफी असरात मुरतब हुए। हुकूमती इकदाम से नेशनल पार्क को महफूज बनाया जाएगा। जो हमारी साहिब इक़्तिदार इस मुल्क में वो छुट्टियां लंदन बनाने जाते थे, अभी भी बड़े बड़े महल्लात हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस मुल्क में किस तरह के मुख्तलिफ किस्म के इलाकों में खूबसूरती है। तो ये जो 15 नेशनल पार्क्स का फैसला किया, मेरे ख्याल में आज हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मुझे खुशी है कि सारे सूबों के अंदर पार्क्स बन रही हैं, सारे सूबे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। अब हम गाइडलाइंस देंगे यहां से पूरी तरह के कैसे इन नेशनल पार्क्स को प्रिजर्व करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जब तक मुकामी लोगों को फायदा नहीं होता वो नेशनल पार्क्स बचेंगे नहीं। जो मुकामी लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको रोजगार भी उसमें से मिले, उनको फायदा नजर आए कि अगर ये नेशनल पार्क बनेगी तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत शहरों के लिए माहौल दोस्त मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। अभी तक हमारे शहरों के मास्टर प्लान ही नहीं है और ये आउटडेट हो चुके हैं। हमारे शहर तबाह हो रहे हैं, ना हम वहां उनको सीवरेज दे सकते हैं लोगों को, जो हमारी लाइंस हैं, बिजली, गैस वगैरह, वेस्ट डिस्पोजल, वो जितने शहर फैलते जा रहे हैं कि हम कभी भी इनको साफ नहीं रख सकेंगे। तो जब पहली स्टेप है मास्टर प्लान बनाना, नेक्स्ट स्टेप है टाउन प्लानिंग करना, और उसके अंदर आ जाएगी सारी जो हम लोगों को पानी देना चाहते हैं शहरों में और अम्यूनिटीज देना चाहते हैं, ये भी इसी का हिस्सा है। ये भी इंशाल्लाह हमारा जो टाउन प्लानिंग है, इसको भी हम अपनी एनवायरनमेंट का हिस्सा बना लेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में वज़ीर आज़म के मशीर मलिक अमीन असलम ने मनसूबे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों के साथ मिलकर कुदरती माहौल के लिए महफूज इलाकों का क़याम अमल में लाया जा रहा है और इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम भी शुरू की गई है। तकरीब में वर्ल्ड कंजर्वेटिव सोसाइटी के जॉर्ज शेलर, प्रोटेक्टेड एरियाज के आलमी कमीशन की सरबराह कैथी मैककेनन और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एशिया के एलेक्स मैक विलियम के वीडियो पैगामात नशर किए गए। उन्होंने कुदरती माहौल को महफूज बनाने के हुकूमती इक़दामात को सराहा। Such a wonderful vision for the future of this country that happens far too rarely in this world, because if we treasure nature, it will repay you.
I want to congratulate Pakistan on this exciting new initiative to create 15 new national parks. Let me commend again Prime Minister, Minister, and all of those involved in this exciting initiative. I'm very pleased today to speak on behalf of IUCN to mark this significant moment in nature conservation in Pakistan. I would like to congratulate the government of Pakistan for launching the Protected Areas Initiative, which aims to conserve nature and generate jobs. तकरीब में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की वज़ीर आला, सिंध, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मुहिम को कामयाब बनाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने सूबों पर जोर दिया कि वो माहौल को महफूज बनाने के लिए जामे मंसूबे शुरू करें। हारून इलाही टूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत का खूबसूरत इस्लामाबाद को मजीद खूबसूरत और जदीद बनाने का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 अरब रुपए से जायद के 4 मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। तकरीब वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में हुई। इसी की तफसीलात मोहम्मद नवीद अजहर से। बढ़ती आबादी की जरूरियात के पेश नजर इस्लामाबाद के सरसब्ज़ो शादाब माहौल को मजीद बेहतर बनाने, सड़कों और पुलों की तामीर के लिए वफाकी तरक्याती इदारे ने साल 2020-21 के लिए खतीर रकम मुख्तस की है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने में खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। उनके विजन के तहत CDA की जानिब से तरतीब दिए गए मनसूबों पर चेयरमैन CDA ने ब्रीफिंग में बताया कि इन मनसूबों का मकसद वफाकी दारुल हुकूमत की बेहतरी के अलावा मुआशी सरगर्मियों का फरोग और रोजगार के मौके की फराहमी है। उन्होंने ब्रीफिंग में बताया कि तरक्याती कामों के लिए बजट में 64% रकम मुख्तस की गई है, जिससे 80 से ज्यादा मंसूबे शुरू किए जाएंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबों में अंडर पासिस, इंटरचेंजेस, सड़कों की मरम्मत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, नदी नालों की सफाई और इस्लामाबाद में पानी की कमी के मसाइल का हल शामिल है। वफाकी हुकूमत की तरफ से गाजी बरोथा पावर प्रोजेक्ट की जानब पहला कदम भी रवां साल उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बटन दबाकर 4 मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। मंसूबों में कोरंग पुल, PWD अंडरपास, रावल डैम चौक इंटरचेंज और I-15 के तरक्याती मंसूबों के पहले मरहले पर काम का आगाज शामिल है। कोरंग पुल मंसूबे पर 66 करोड़ रुपए, रावल चौक इंटरचेंज पर 1 अरब से जायद, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर PWD अंडरपास की तामीर पर 43 करोड़, जबकि I-15-3 के तामीराती मंसूबे पर 86 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। मंसूबों में कौमी खजाने को 62 करोड़ रुपए से जायद की बचत भी होगी। हुकूमत की तरफ से इस अज़्म को भी दोहराया गया कि वफाकी दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता साल शुरू किए जाने वाले मंसूबों को रवां साल मुकम्मल किया जाएगा और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कैपिटल अस्पताल की तोसी भी की जाएगी। हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर वफाकी दारुल हुकूमत के कैपिटल अस्पताल में 83 ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा किया है। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़े आपको बताएं, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जोर दिया है कि मीडिया कोरोना वबा से मुतालिक अवाम को हिफाजती तदाबीर पर अमल करने और मवेशी मंडियों में जाने के हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनाने से मुतालिक आगाही दे। इस्लामाबाद में ईद उल अजहा के दौरान कोरोना से मुतालिक हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद के हवाले से आला सतह इजलास में सदर मुमलिकत ने कहा कि लोगों में शऊर और आगाही के फरोग में मीडिया का अहम किरदार है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अवाम भी वायरस से बचने के लिए समाजी फासला बरकरार रखें और इज्तिमाई कुर्बानी करें। उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल उलमाए किराम और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाए ताकि इस वबा से मौसर तौर पर बचा जा सके। सदर मुमलिकत को ईद उल अजहा की मुनासबत से किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मुल्क की माशी और समाजी तरक्की में मयारी तालीम का अहम किरदार है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से आला सतह इजलास से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने मयारी तालीम के फरोग के लिए मजीद इक़दामात की हिदायत की और कहा कि यूनिवर्सिटी फासलाती तालीम के फरोग के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी बुरोकार लाए। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम ने सदर ममलिकत को ब्रीफिंग दी। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी और दीगर पेशा वराना तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश किया और कराची में अमन व अमान के हवाले से सिक्योरिटी इदारों की काविशों की तारीफ की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से भी मुलाकात की।
आर्मी चीफ ने कहा कि मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें चौकस रहना होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने गैरियन हेल्थ और फील्ड आइसोलेशन सेंटर का दौरा भी किया और कोरोना से बचाव के लिए कराची फॉर्मेशन की मौसर मावनत को सराहा। आर्मी चीफ ने सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया और यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। वफाकी वज़रा सेनेटर शिबली फराज, सैयद अली हैदर जैदी और मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि माजी में तमाम इदारों को तबाह किया गया। सिविल एविएशन और PIA को दुनिया के बेहतरीन इदारे बनाएंगे। तफसीलात राना इफ्तिखार अहमद से। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि माजी में PIA का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में होता था, लेकिन गुज़िश्ता 10-15 साल से ये इदारा ज़वाल का शिकार है। 60 की दहाई में, 70 की दहाई में, 80 की दहाई में एयरलाइन का एक मकाम था। दूसरे ममालिक में हमारी एयरलाइंस ने उनको बनाने में, जिसमें कि एमिरेट्स, गल्फ की जितनी एयरलाइंस थी, मलेशिया, इंडोनेशिया, उसमें हमारी मैनेजमेंट में हमारे पायलट्स ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। माजी की जो एक रेपुटेशन थी उसको हम दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये श्योर कराना चाहते हैं जितने भी पैसेंजर्स हैं कि जो पायलट्स इस वक्त उड़ा रहे हैं जहाज, वो अल्लाह ताला के फजल से सारी उस स्क्रूटनी प्रोसेस से वो गुजर चुके हैं। बहरी अमूर के वजीर सैयद अली हैदर जैदी ने कहा कि 2010 से 2018 के दरमियान 236 अफराद को खिलाफे ज़ाब्ता लाइसेंस जारी किए गए। तहकीकात के बाद 54 अफराद को ग्राउंड कर दिया गया है। एक बहुत डिटेल्ड फोरेंसिक इंक्वायरी शुरू हुई। जब उसकी डिटेल स्टडी की गई उस फोरेंसिक इंक्वायरी कमीशन ने 2010 में 8, 2011 में 20, 2012 में 28, 2013 में 20, 2014 में 12, 2015 में 25, 2016 में 39, 2017 में 46 और 2018 में 38। ये टोटल बनते हैं 236 इर्रेगुलरिटीज और सस्पेक्ट इश्यूज थे पायलट के साथ। कोई भी ऐसा पायलट जिसमें कोई भी सस्पेशन हो या इर्रेगुलरिटी हो, वो ग्राउंडेड है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि इदारों में होने वाली बेज़ाब्तियों पर समझौता नहीं किया जा सकता। कोई शोबा उठा ले देख लें, उसका जो रेगुलेटर है वो कम्प्रोमाइज हुआ है, और वो कम्प्रोमाइज इसलिए हुआ है कि उस बिजनेस के अंदर किसी न किसी आला सतह के हुकूमती ओहदेदार या खानदान के अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उसकी वजह से ये सारा कम्प्रोमाइज होता है। शक भी होगा कि कोई चीज कम्प्रोमाइज है तो सबसे पहले आपने उस स्टाफ को ग्राउंड कर देना है। इसके साथ साथ घरों के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। विफाकी वज़रा ने कहा कि हुकूमत ने मार्च 2019 में नई एविएशन पॉलिसी मुतारफ कराई। मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़े आपको बताएं, वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि PIA में ज्यादातर पायलट बाकायदा लाइसेंस याफ्ता हैं, ताहम मुसाफिरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ और सफरी सहूलियात को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाने के लिए इदारे में जामे इस्लाहात की जा रही हैं। डेनमार्क के वजीर खारिजा के साथ वीडियो लिंक के जरिए बातचीत करते हुए वजीर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान के लिए GSP+ स्टेटस और FATF के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत के लिए डेनमार्क के वजीर खारिजा का शुक्रिया अदा किया। मुआविन खुसूसी मोहित यूसुफ ने कहा है कि खलीजी ममालिक के लिए PIA की परवाजें जारी रहेंगी। अब तक 70 मुल्कों से पाकिस्तानियों को वापस लाया जा चुका है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुआविन खुसूसी ने पाकिस्तान से बड़ी तादाद में कोरोना मरीजों के बाहर जाने की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए वाज़ेह किया कि कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। वायरस से पूरी दुनिया मुतासिर है, पाकिस्तान अलग थलग नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को मुतल्लिका मुल्क और एयरलाइन की पॉलिसी पर अमल करना होगा। मुआविन खुसूसी ने मुसाफिरों से अपील की कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सफर का फैसला करें। नाज़रीन, तर्जुमान पाक फौज ने कंट्रोल लाइन और गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी दस्तों की तैनाती से मुतालिक भारतीय मीडिया की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए उनकी तरदीद की है। अपने ट्वीट में DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि चीन की तरफ से स्कर्दू एयरबेस के इस्तेमाल से मुतालिक भारतीय मीडिया की खबरें भी मनगढ़ंत, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना हैं। उन्होंने पाकिस्तान में चीनी दस्तों की मौजूदगी से मुतालिक भारतीय मीडिया की खबरों की भी तरदीद की।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने सोपुर में 3 साला बच्चे के सामने उसके नाना को शहीद किए जाने और भारतीय बर्बरियत के हवाले से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। शिबली फराज ने अपने ट्वीट में अहमद फराज के शेर से अपने जज्बात का इजहार किया। मैं कट गिरूं या सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। भारत मनफी प्रोपेगेंडे और मजालिम से सच को नहीं दबा सकता। मकबूजा कश्मीर से आने वाली तस्वीर कल पूरी दुनिया ने देखी हैं, जिनमें काबिज अफवाज के इंसानियत सोज रवैये की अक्कासी होती है। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय एजेंसी रॉ की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बारे में आलमी बरादरी को आगाह कर चुका है। तर्जुमान ने बताया कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात में अफगानिस्तान में कौमी मफाहमत के लिए कौंसल और मुज़ाकराती टीमों के क़याम को खुश आइंद करार दिया और इस उम्मीद का इजहार किया कि कैदियों की रिहाई जल्द मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के अमल की राह हमवार होगी। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी कहते हैं कि भारत अपनी घिनौनी हरकतों के जरिए पाकिस्तान और जम्मू और कश्मीर के दरमियान मौजूद मजबूत रिश्तों को किसी सूरत मुतज़लज़िल नहीं कर सकता। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सैयद अली गिलानी ने अपने ट्वीट में ये बात जोर देकर कही कि कश्मीर और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बुनियाद कलमा तैयबा है। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा ने कहा कि ये याद रखना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। सैयद अली गिलानी ने सोपुर में भारतीय फौजियों के हाथों बुजुर्ग शहरी की हलाकत पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस खित्ते में जो खून बहाया गया है वो भारतीय साम्राज्य को हमेशा के लिए गर्क कर देगा। सैयद अली गिलानी ने कहा कि ऐ काश कि मैं इस गम के मौके पर शहीद बशीर के घर जा सकता। मीरवाइज उमर फारूक की सरबराही में कायम हुर्रियत फोरम के एग्जीक्यूटिव अरकान मौलाना अब्बास अंसारी, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट और बिलाल गनी लून ने श्रीनगर में एक इजलास में कहा कि जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासब में तब्दीली की भारतीय साजिशें नाकाबिल कबूल हैं। मीरवाइज गुज़िश्ता बरस अगस्त से घर में मुसलसल नजरबंदी के बायस इजलास में शिरकत नहीं कर सके। फोरम के अरकान ने हुर्रियत क़यादत के मौक़िफ़ दोहराया कि तनाज़े कश्मीर को रियासती अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तहरीक़ी मुज़ाकराती अमल के जरिए पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कश्मीर कोलेशन के रहनुमाओं बैरिस्टर अब्दुल मजीद तरम्बू और प्रोफेसर नज़ीर अहमद साल, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं अल्ताफ हुसैन वानी, एजाज रहमानी, मुश्ताक अहमद भट्ट, काजी इमरान और कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन के चेयरमैन अली रजा सैयद ने अपने अपने बयानात में भारतीय फौजियों की तरफ से सोपुर में एक बेगुनाह शहरी की सफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत की है। भारत इंसानी हुकूक के आलमी क़वानीन की पासदारी करते हुए मखसूसा कश्मीर में बच्चों के खिलाफ मजालिम का सिलसिला बंद करे। पाकिस्तान ने जनीवा में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम से मुतालिक इजलास में मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब खलील हाशमी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे के साथ इंसानी हुकूक कौंसिल के 44वें मुज़ाकरे से खिताब करते हुए कहा कि 70 साला नाना की लाश पर 3 साला नवासे की तस्वीर कश्मीरी बच्चों पर भारतीय जुल्म, उनकी जिंदगियों और जहनों पर तशद्दुद के असरात की कहानी का खुलासा है। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की शदीद मजम्मत की है। एक बयान में सलामती काउंसिल ने दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासिर और उनके सहूलतकारों को कानून के शिकंजे में लाने पर जोर दिया। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और हुकूमत से यकजहती का इजहार किया है।
ایک بیان میں عالمی ادارے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے. سلامتی کونسل کے تمام ارکان نے چین کی جانب سے پیش کیے گئے مذمتی بیان کی متفقہ طور پر حمایت کی. بھارت نے مذمتی بیان رکوانے کی سر توڑ کوشش کی لیکن اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. بھارت کی منفی اور زہریلی سفارتکاری کے باوجود جنرل اسمبلی کے صدر، سیکرٹری جنرل اور کئی ممالک پہلے ہی مذمت کر چکے ہیں. ناظرین، پنجاب حکومت کا عوام کے لیے بڑا ریلیف، آٹے کی قیمتوں میں نمایاں کمی. 20 کلو آٹے کی قیمت میں 200 روپے کمی، نئی قیمت 850 روپے مقرر کر دی گئی. مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں انیس الرحمان. پنجاب کابینہ نے فلور ملوں کو گندم کے اجراء کے حوالے سے عبوری پالیسی 2020-21 کی منظوری دی. نئی پالیسی سے مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1050 روپے سے کم ہو کر 850 روپے ہو جائے گی. کابینہ نے فیصلہ کیا کہ صرف فنکشنل فلور ملز کو ہی سرکاری گندم کا کوٹا دیا جائے گا. سرکاری گندم کے اجراء کی عبوری پالیسی کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ معاشی مشکلات کے باوجود عوام کو ریلیف دیا جائے گا. پنجاب کابینہ نے محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کے زیر انتظام سرکاری یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کی تقرری کے لیے سرچ کمیٹی تشکیل دینے کے علاوہ پنجاب اربن اینڈ موویبل پراپرٹی رولز 1958 میں ترمیم اور ملتان میں ٹائم انسٹیٹیوٹ کے قیام کے لیے ایک پنجاب اسمبلی میں پیش کرنے کی بھی منظوری دی. پنجاب کابینہ کے اجلاس میں کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کے 13 مئی 2020 کو بجٹ اور سالانہ ترقیاتی پروگرام 2020-21 کے بارے میں منعقد ہونے والے خصوصی اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی. کابینہ اجلاس میں کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے امور قانون سازی کے 26ویں اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے انقلابی اقدامات کی منظوری دی. پہلے مرحلے میں پنجاب کے 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ان سروسز کا آغاز کیا گیا ہے. ای گورننس پر مبنی محکمہ اصلاحات کے ذریعے تعمیراتی شعبے سے متعلقہ NOC کا اجرا آسان بنا دیا گیا ہے. یہ NOC اب ای خدمت مراکز سے 1 ونڈو کے ذریعے حاصل کیے جا سکیں گے. وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ نقشوں کی منظوری، تکمیل تعمیر سرٹیفکیٹ، جگہ کے استعمال میں تبدیلی کا NOC یا نجی رہائشی کالونیوں کی منظوری سے متعلقہ اجازت نامے نئے شیڈول کے مطابق ملیں گے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم نے کرپشن کا ایک اور دروازہ بند کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان اصلاحات سے معیشت کا پہیہ رواں دواں ہونے کے علاوہ تعمیراتی شعبے میں نوکریوں کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے. مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی. ملاقات میں حلقوں کے مسائل، فلاح عامہ کے منصوبوں اور ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے گفتگو کی گئی. وزیر اعلیٰ نے فردن ارکان اسمبلی کی تجاویز نوٹ کی اور ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی. ارکان اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان آگے کی جانب گامزن ہے، جبکہ اپنی جیبیں بھرنے اور شور مچانے والے عناصر بہت پیچھے رہ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت تنقید کی پرواہ کیے بغیر عوامی خدمت کے مشن کو جاری رکھے گی. انیس الرحمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب صوبے کا وہ خواب جو ہم نے اپنے منشور میں سمویا تھا، آج اس کی عملی تعبیر کا آغاز ہو چکا ہے. چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب، IG جنوبی پنجاب کی تعیناتی ہو گئی ہے. لوگوں کو اب لاہور جانے کی ضرورت نہ رہے گی. انشاءاللہ پولیس کے معاملات جتنے ہیں اور جتنے ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، دیگر جو ان کے مسائل ہیں، وہ ملتان اور بہاول پور میں ہی حل ہوں گے. یہ جو ڈیولوشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے، یہ اس کی طرف بھی ایک بہت بڑا قدم ہے. انشاءاللہ جب یہ پروونشل فائنانس ایوارڈز کا نفاذ ہوگا تو ہر ضلع کو اس کی آبادی کے تناسب سے، اس کی پسماندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی محرومیوں کو سامنے رکھتے ہوئے وسائل دستیاب ہوں گے. اب جنوبی پنجاب کا پیسہ جنوبی پنجاب کی طرف لگے گا. ہے.
गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में मजीद 4,339 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 78 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,17,809 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 4,473 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की तादाद 77,740, सिंध में 86,795, बलूचिस्तान में 10,608, खैबर पख्तूनख्वा में 26,938, इस्लामाबाद में 13,082, गिलगित बल्तिस्तान में 1,511 और आजाद कश्मीर में 135 है। अब तक मुल्क भर में 1,04,694 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,09,19,000 से तजावज़ कर गई है। 5,21,400 अफराद हलाक, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 61,06,000 हो गई। अमरीका में वायरस से मुतासर होने वाले 28,04,000 अफराद में से 1,31,000 से जायद मौत की वादी में उतर गए, जबकि 11,70,000 सेहतयाब हो गए। ब्राजील, रूस और भारत में भी बड़ी तादाद में लोग कोरोना से मुतासर हैं। कोरोना मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफे के बाद अमरीका और भारत की कई रियासतों ने लॉकडाउन में नरमी के फैसलों को वापस ले लिया है। उधर यूरोपीय यूनियन ने 14 ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी, जिनके शहरियों को 1 जुलाई से यूनियन में दाखिले की इजाजत होगी। ताहम इन ममालिक में चीन, ब्राजील और अमरीका शामिल नहीं हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार आफरीदी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में पार्लिमानी कश्मीर कमेटी को मजीद फाल बनाने और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर ने कहा कि मकबूजा वादी में भारतीय फाशिस्ट हुकूमत का गैर कश्मीरियों को आबाद करना सलामती काउंसिल करारदादों की नफी है। पार्लिमानी कश्मीर कमेटी दुनिया के सामने भारत के असल चेहरे को बेनकाब करने के लिए भरपूर किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से इस्लामाबाद में मुलाकात की। स्पीकर ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट ने बजट इजलास के दौरान जिस नज़्म नस्क का मुजाहरा किया वो काबिल तारीफ है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से टैक्स फ्री आवान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखती है। बजट सेशन के दौरान अरकान की तरफ से पेश की गई तजावीज़ हुकूमत को आइंदा बजट बनाने में मददगार साबित होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमतों से मुतालिक तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने के बारे में सिंध हाई कोर्ट का फैसला 14 जुलाई तक बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील से तहरीरी दलाइल तलब करते हुए मुकदमा 3 रुकनी बेंच में मुकर्रर करने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शुगर मिल्स एसोसिएशन कमीशन की रिपोर्ट से जान नहीं छुड़ा सकती। कमीशन गैर कानूनी करार दिए जाने की सूरत में भी रेगुलेटरी इदारों को काम से नहीं रोका जा सकता। रेगुलेटरी इदारे कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिए बगैर भी कार्रवाई कर सकते हैं। शुगर मिल्स के पास रेगुलेटरी इदारों के खिलाफ दिफा का मौका मौजूद है। बेंच के रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी से मुतालिक तहकीकाती कमीशन की तश्कील कानून के मुताबिक करार दी थी। शुगर मिल्स एसोसिएशन की नजर में कमीशन की तश्कील गैर कानूनी थी, तो उसे पहले चैलेंज क्यों न किया गया। मामले की आइंदा समाअत 14 जुलाई को होगी। इत्तलात और नशरियात के लिए कौमी असम्बली की मजलिस कायमा ने कहा है कि पाकिस्तान टेलीविजन कौमी इदारा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी बेहतरी के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात उठाए जाएंगे। मजलिस कायमा का इजलास चेयरमैन मियां जावेद लतीफ की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शब्बी फराज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और कहा कि पार्लिमानी निज़ाम में कायम कमेटियों को नुमाया मकाम हासिल है और हम इनकी आरा को बहुत अहमियत देते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात अकबर दुरानी ने नक्शे के हवाले से कहा कि कश्मीर कॉस्ट का मामला कौमी नौइयत का है, इसलिए वजारत इत्तलात ने आला सतह इंक्वायरी का कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से ताखीर हुई इंक्वायरी की रिपोर्ट से कमेटी को मुकम्मल तौर पर आगाह किया जाएगा। पीटीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर मंजूर ने बताया कि मामले का इल्म होते ही फौरन कार्रवाई की गई और पीटीवी सर्विस रूल्स के मुताबिक तहकीकात की गई। कमेटी ने पीटीवी का दौरा करने का फैसला किया, जिससे इदारे के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी और इसी की रोशनी में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ ने कहा कि हम कौमी इदारे का वकार और इसे फलता फूलता देखना चाहते हैं।
नाजी निजकारी के बारे में काबीना कमेटी ने न्यूयॉर्क में PIA की मलकियत रूजवेल्ट होटल के लिए कायम टास्क फोर्स को डी नोटिफाई करने की हिदायत कर दी है। कमेटी इजलास मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। रूजवेल्ट होटल को लीज पर देने के हवाले से मामला तय करने के लिए टास्क फोर्स चेयरमैन निजकारी कमीशन की जेर क़यादत कायम किया गया था। इजलास में निजकारी कमीशन को होटल को ज्वाइंट वेंचर की बुनियाद पर मुतफरक इस्तेमाल के लिए बहाल करने में माली मुशीर की खिदमात हासिल करने की भी हिदायत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद और उनकी जमात ने पाकिस्तान को कंगाल और इदारों को बर्बाद किया। स्टील मिल्स, PIA और रेलवे समेत तमाम इदारों की तबाही की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। वफाकी वजीर मुराद सईद ने अपने बयान में कहा कि 2008 तक स्टील मिल्स का 8 अरब से जायद मुनाफा था। एयरलाइन में भर्तियां और PIA को तबाही के किनारे ला खड़ा करना पीपल्स पार्टी का ही कारनामा है। कौमी इदारों को लूट कर पैसा जाली अकाउंट्स में छुपाया गया। मुराद सईद ने कहा कि फर्जंद जरदारी की वजाहत डिजिटल वज़ीर आज़म की मुआविन में पहली पर एक पाकिस्तान बैतुल में